बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. Welcome to all students and parents to our new academic session 2020 to 21. This is class 9 and I am your chemistry teacher. First of all, I am going to introduce about your book and copy maintain. How will maintain your copy and book? The book which we are going to study, that is the chemistry textbook, which is published by the Saint Textbook Board. You have to use this book. I want to discuss about the syllabus of chemistry. According to metric board schedule, 10 units are included. Now, how will maintain your copy? First of all, you maintain your copy. You have to fill up the first page. This is the cover page of your copy, as you all know about this. After this, you will fill up the first page by the giving basic information, name, student name. This is all about you. After this, you have to maintain the index page. This is the index page, and you have to mention the basic concept of chemistry, and you have to mention from today date 9th of July. Okay, now from here your copy will be started. As you all know, you have to maintain this page. First semester midterm started session 2020 to 21. So we start our lectures according to the first semester midterm content. In first semester midterm content, 3 units are included. Unit number 1, Introduction to Chemistry. Unit number 2, Chemical Combination. And unit number 3, Atomic Structure. We have unit number 1, Introduction to Chemistry. But before this, we will discuss here the basic concept of chemistry. This is very essential for us. This class is very essential for us because due to this we will easily understand all lectures because due to this. So we have the basic concept of chemistry. Today we have a topic, the basic concept of chemistry. In basic concept of chemistry, first terminology we have a science. What is science? Science is a Latin word derived from a scientia, which means knowledge. You know very well, English has a knowledge, Islamic has a knowledge, PhD has a knowledge. But science is a knowledge which we gain to obtain on the basis of hypothesis, observation and result. So, every scientist follow these 3 rules. कोई भी साइंटिस्ट जो होता है वो इन रूल्स को फॉलो करके अपनी एक नॉलेज लेता है और वो रूल ये हैं हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट. We have a broad topic for this and we will discuss in the last from this chapter. But here we have there are 3 types of science. Science की जो होती है वो 3 types होती है. First type is the universal science, another is the formal science and last one is the social science. In formal science, in which we study about the physics, chemistry and biology. In formal science, in which we study about the logic and maths. In which we study about the society and peoples. But we have a work about the universal science. In universal science, we have to study about the chemistry. Okay, now we have a next terminology after science. Chemistry. What is chemistry? Chemistry is the branch of science in which we study about the composition, structure and properties of matter. Matter, anything. What is matter? Anything that has mass and occupies space called matter. Like that, this is a duster. Duster has mass and occupies space. Everything that you see all around you, it's made up of atom, and matter is composition of atom. Like that, here is an atom. The definition of atom is, atom word is derived from atomos, which means indivisible.
How indivisible? You have a piece of paper. You have a piece of paper and you have to dividing it further and further and further pieces. So now till what stage can you reach? You are unable to divide it further. आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, अगर आप उसको फर्दर एंड फर्दर पीसेस में कट करते जाते हो तो आपके पास एक ऐसी पोजीशन आती है कि अब वो डिवाइड नहीं हो पाता है फर्दर. सो दैट इज कॉल्ड द एटम. अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस, साइंटिस्ट हु इज ग्रीक फिलोसोफर, gave the idea about atom. Nothing can be divided further. कोई भी चीज जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रही है, कटेबल नहीं हो रही है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? एटम कहलाएगी. और जब बहुत सारे एटम कलेक्टिवली कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है मैटर. मैटर इज द कंपोस्ट ऑफ द एटम. मैटर की जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो एटम से ही मिलकर बनी है. एवरीथिंग दैट यू सी ऑल अराउंड यू इज मेड अप ऑफ एटम. हर चीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ एटम. सही. ओके, नाउ आफ्टर एटम वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. Structure of atom. Atom is made up of 3 subatomic particles which are electron, proton and neutron. These are the fundamental particle of an atom and these are also known as the subatomic particle of an atom. जैसा कि हमें पता है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, बेसिक पार्ट होते हैं, बुनियादी पार्ट होते हैं जो हमारे पास कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एटम. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिजाइड करता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में. दिस इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम. इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करते हैं न्यूक्लियस में. प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट हैज पॉजिटिव चार्ज. होल न्यूक्लियस में हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एरियाज. दीज फिक्स्ड एरियाज आर कॉल्ड ऑर्बिट और शेल. ये फिक्स्ड एरियाज हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट और शेल कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं. दीज एरियाज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल. So now proton and neutron collectively called the atomic mass. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जब हम कलेक्टिवली करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक मास. एटॉमिक मास, like that, this is an element, this is the carbon element. This atomic mass is always denoted by A and it is right on the superscript position. This is the superscript position and this is the subscript position. एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे हम ये राइट करते हैं, एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे हम ये राइट करते हैं, ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन कहलाती है और ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट पोजीशन कहलाती है. सो एटॉमिक मास इज ऑलवेज राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एलिमेंट ऑन द सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन and it is always denoted by A. And atomic number is electron, total sum of electron is always denoted by A, Z, and it is always right on the subscript position. तो जब भी हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास राइट करना होता है तो हम एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे इन पोजीशन को भी फॉलो कर रहे होते हैं. दिस इज द बेसिक पॉइंट फॉर अस. आफ्टर दिस we have a terminology of matter.
We have studied in previous classes what is matter. Anything that has mass and occupy space is called a matter. And matter is composed of atoms. जब बहुत सारे एटम आपस में collectively combine हो जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है matter. Like we classify matter into two broad categories. These two broad categories is the pure substance and impure substance. But now here question arise that यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज सब्सटेंस, कि आपके पास सब्सटेंस क्या है. तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है. सब्सटेंस हमारे पास सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. अगर हम सब्सटेंस की बात करें यहाँ पे तो जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो सब्सटेंस है. पहली बात तो ये, टू और मोर एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो. जी, सब्सटेंस की बात करते हैं. व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. प्योर इट मीन सेम टाइप ऑफ एटम. यहां प्योर के मीनिंग है सेम टाइप ऑफ एटम. यहां पर वो बात नहीं की जा रही कि प्योरिटी की बात की जा रही है. अक्सर हम बात करते हैं यहाँ पे प्योर की बात ये की जा रही है कि सेम टाइप ऑफ एटम. अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, लेट सपोज हाइड्रोजन एटम, तो अब हम ये कहेंगे वी हैव अ सब्सटेंस. नाउ टू और मोर एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो. सेकेंड कॉन्सेप्ट वी हैव टू और मोर एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो. एग्जाम्पल लाइक दैट वाटर. We all know about the formula of water, H2O. Two hydrogen atoms chemically bonded with one oxygen atom. So here, two hydrogen atoms chemically bonded with one oxygen atom. So that is called a substance. आपके पास क्या कहलाएगा? सब्सटेंस कहलाएगा. बिकॉज हियर इज अ फिक्स रेशियो. अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, सपोज दैट अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 2 हो जाए और ऑक्सीजन भी आपके पास 2 हो जाए, तो अब ये वाटर नहीं रहेगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. तो यहाँ पे वाटर की कंडीशन के लिए हमारे पास ये रेशियो फिक्स होनी चाहिए. इज इट क्लियर? आफ्टर दिस सब्सटेंस वी विल डिस्कस द broad categories. These are pure substance and impure substance. What is the pure substance and what is the impure substance? Firstly, we will discuss the pure substance. What is the pure substance? Like that water molecule. These are the substances which are made up of only one kind of particle. What is pure substance? These are the substances which are made up of only one kind of particle. How? ये वो substances होते हैं जो एक ही किस्म के particle से बने होते हैं. किस तरह? यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर की. यहाँ पे हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, सही. Another water molecule, another water molecule. ये वाटर मॉलिक्यूल कलेक्टिवली कंपाइल हो जाएंगे और हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे. सो प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जहां पर एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं. दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. सो दिस इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंसेस. What is impure substances? Impure substances, these are the substances which are made up of only more than two kinds of particle. Two or more than two kinds of particle. How? Impure substances is also known as the mixture. These impure substances can be homogeneous
और हेट्रोजीनस, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं, 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर इन सच अ वे दैट कैन सेपरेट इजीली। वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब ये इम्प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास होमोजीनस भी होते हैं और हेट्रोजीनस भी होते हैं। क्लियर? होमोजीनस एग्जाम्पल दी जाती है, होमोजीनस हाउ, कैसे होमोजीनस होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, होमोजीनस क्या होता है। होमोजीनस यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास टी, चाय के एग्जाम्पल है। सो हमारे पास हाउ डू मेक अ टी, हाउ डू यू मेक अ टी? We add sugar, tea leaves, water, milk and so on. So these ingredients are kept in separated form. Sugar, tea leaves, water. So these ingredients are kept in separated form. These are also known as reactant. Reactant always placed in the right hand, left hand side, and product is always placed in the right hand side. Reactant वो चीजें होती है, वो chemicals होते हैं, these are the reacting substance which react with each other, so always placed in the left hand side. और प्रोडक्ट लाइक दैट वी हैव अ शुगर, टी लीव्स, वाटर, ये कंपाइल्ड हो जाता है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाती है। वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाती है? टी। वी कांट सेपरेट ईच अदर, अब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते और हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है, वो क्या कहलाएगी? हमारे पास टी। तो केमिकल्स जो हमारे पास पहले से रखे हुए होते हैं, ठीक है, सेपरेट फॉर्म में रखे हुए होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और जो प्रिपेयर हो जाते हैं, जो एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है, फाइनल हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो कहलाएगा प्रोडक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे टी की। इट लुक सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, यहाँ पे कोई आपके पास चेंजेस नहीं है, केमिकली फिक्स्ड विद ईच अदर है। जब हम केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो फिक्स हो जाते हैं एंड वी कांट सेपरेट इजिली थ्रू फिजिकल मैथड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ होमोजीनस। Now I'm talking about the heterogeneous. What is heterogeneous? 2 or more elements are combined but not chemically combined. These are combined physically. These are combined physically. How? We have another example. Heterogeneous. We have example oil dissolved in water. Oil dissolved in water. You know, जब हम ऑयल को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो आपने देखा होगा उसमें ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। वी कैन सेपरेट इजिली फ्रॉम इच अदर, हम उसमें आराम से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ हेटेरोजेनस। अनदर एग्जांपल, सैंड डिसॉल्व इन वाटर। जब हम सैंड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो तब भी हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं, वी कैन इजिली सेपरेट फ्रॉम दिस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ हेटेरोजेनस। डिफरेंट प्रोपोर्शन हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हेटेरोजेनस की बात आ रही है कि डिफरेंट प्रोपोर्शन है एंड केमिकली मिक्स नहीं होंगे, फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है, फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर लिया जाएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ हेटेरोजेनस। फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेट नहीं किया जाएगा, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ होमोजेनस। लास्ट, एटम्स जब हमारे पास कलेक्टिवली कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स बन जाते हैं और एलिमेंट्स जब कलेक्टिवली कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है और मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाते हैं हमारे पास तो एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है, सो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। ओके, now we have a pure substance. Matter is classified into the pure substance and impure substance. What is pure substance? These are the substance which are made up of only one kind of particle. This is called a pure substance. And impure substance, these are the substances which are made up of only more than one kind of particle. जो एक से ज़्यादा particle से
एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, वो हमारे पास कहलाता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस फर्दर कैटेगराइज इनटू द एलिमेंट एंड कंपाउंड। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट की बात की जाती है यहाँ पर एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड वन काइंड ऑफ पार्टिकल। हाउ? वी हैव अ एग्जांपल ऑफ कोल। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कोल, मीन कोयला। यहाँ पे एग्जांपल है कोल। कोल आपको दिखता है एक बिग पीस में। अगर हम यहाँ पे इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लें, एक यहाँ पे छोटा सा पोर्शन ले लें, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करें, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स दिख रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की है एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो हमारे पास एक ही किस्म के पार्टिकल से मिलकर बनता है वो हमारे पास कहलाता है एलिमेंट। लाइक दैट कार्बन है, लाइक दैट हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास ये कहलाएंगे एलिमेंट। वो पार्टिकल, वो सब्सटेंस जो एक ही एलिमेंट, एक ही पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं एलिमेंट। सो डेफिनेशन वी हैव एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। नाउ वी हैव अ कंपाउंड। अब कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में हमारे पास आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल। एंड कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली टू और मोर एलिमेंट्स बट दे केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास कंपाउंड वो एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकली कंबाइन तो होते हैं बट फिक्स रेशियो के साथ होते हैं। लाइक दैट हाइड्रोजन का रेशियो यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे क्या है? 1 है। अनदर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा हमारे पास, केमिकली कंबाइन हो जाएंगे। अनदर वाटर मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन हो जाएंगे। तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन होकर हमारे पास एक प्रोडक्ट देंगे। वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाएगी? कंपाउंड। और वो कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा? वाटर। इज इट क्लियर? So, I hope you have got everything. You have a homework. You have a homework. You have home task. You have to prepare this question. What is matter? And classify the matter. You will do this question in your copy but on wording. आपने जितना भी लेक्चर समझा है आपने उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में राइट करना है बट ओन वर्डिंग जितना आपने समझा है अकॉर्डिंग टू दिस। You will do copy work from this content solution. ये आपके पास कंटेंट है और इसमें लेक्चर दिया गया है, ठीक है। आपने इसमें से कॉपी करना है। 3 वीक्स का लेक्चर आपके पास पे दिया गया है, ठीक है। आपका ये कंटेंट है, आपने इसको फॉलो करना है। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। आई विल पुट माई ऑल एफर्ट वाइजली एंड गेट अ बेटर एफर्ट फ्रॉम यू। थैंक्स सो मच। वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास एंड स्टार्ट लेक्चर 2. टेक केयर अ लॉट। अल्लाह हाफिज।